Good evening. I am Anil Agrawal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in Delhi, it is raining now and very pleasant weather. So how is weather in your city? Just tell in comment column. Tell the weather and your city. Now one question is asked. It is a very frequently asked question. Sir, should we take Hindi or English in RRB examination? And I wanted to tackle this issue earlier also. But now, since we are very close to release of notification, I think it is the very relevant question we should discuss. And this is where a slight mistake spoils your chance of selection. So this is very good question. So should we prepare for English? Should we prepare for Hindi? Now, what is the normal basis of picking Hindi as a language by many people in place of English? They are afraid of English, they are weak in English, and by default they feel Hindi is a better option, we should go for Hindi. And this is the biggest mistake that is committed by lot many people. If you are weak in English does not mean you are strong in Hindi. You should ponder, are you strong in Hindi? Are you strong in English? So if you are picking a language, the picking of language should be based on, are you strong in that particular language? Speaking a language is entirely different than knowing a language. So if you are good in grammar of any language, you have command over the writing skills of a language, you should pick that language. So either of the language can be picked by you, but never have a myth that Hindi is easier than English. And this is the myth which many people have in their mind, and that's why they fail in RRB examination. Another point to be noted here is, in most competition you are already preparing for English. So little more preparation for English language can help you in RRB exam. But if you pick Hindi, you have to start afresh. So both the aspects you should keep in mind. It is your personal choice. I will not recommend whether you go for Hindi or English. This is your choice. You can go for Hindi, you can go for English, but the criteria should be, are you strong in that language? Our mock tests are providing material for Hindi also, Hindi language, and for English language also. Because many of you have asked, sir, from where we should read Hindi language. So for Hindi language also, sufficient study material is available in the mock test. Mock test link is available in description and comment column. Click the link, register, take annual plan along with banking sectional mock test, apply coupon code AA03 to have 10% off. Lot of Hindi material is available on that website. So you can cover there. But whether you should choose Hindi as a default of English, that is a wrong way. If you are really strong in Hindi language, go for Hindi language. If you are strong in English language, go for English language. Weakness in English should not take you to Hindi. A person is weak in English does not imply he is strong in Hindi. The moment you understand this concept, you will be able to pick the right language for your examination. The language choice should be based on up to which level you have studied that language. Have you studied Hindi language up to a reasonably high level? Then you should go for Hindi language. Hindi is your language. That should not be criteria for picking Hindi or English as language in RRB examination. This is my advice. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. तो अभी दिल्ली में बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है. आपके शहर में कैसा मौसम है? कमेंट कॉलम में बताइए. अपने शहर का नाम लिखिए, मौसम के बारे में बताइए.
अब क्योंकि आज ये हमारी जो वीडियो है एक बड़े लाइटर सब्जेक्ट पे है, बट सीरियस सब्जेक्ट पे है। काफ़ी दिन से मेरा मूड था इस पे भी एक वीडियो बनाने की। काफ़ी लोग पूछते हैं सर हिंदी लें या इंग्लिश लें, हिंदी लें या इंग्लिश लें आरआरबी में एज ए सब्जेक्ट। अब देखो आरआरबी में मैंने देखा है कई लोग हिंदी इसलिए ले लेते हैं कि वो अंग्रेजी में वीक है, और ये सबसे बड़ी भूल करते हैं। वो एग्जाम है भाषा का, मैं एक भाषा में कमजोर हूं उससे मैं दूसरी भाषा में मजबूत हूं, ये नहीं हो जाता। मैं रोज हिंदी बोलता हूं इसलिए मैं हिंदी में अच्छा हूं, ये भी नहीं हो जाता। तो मुझे ये समझना है कि मैंने जो भाषा चुननी है उस भाषा का मुझे कितना ज्ञान है, और ज्ञान का मतलब है उसकी व्याकरण मुझे कितनी आती है। ग्रामर मदर है भाषा की, तो अगर इंग्लिश की ग्रामर मुझे अच्छी आती है तो इंग्लिश लेना चाहिए, और हिंदी की व्याकरण अच्छी आती है तो हिंदी लेना चाहिए। हिंदी लिखना मुझे अच्छा आता है, मीन्स मुझे मात्राओं का बोध है, मैं जो उसके अंदर भाषा का प्रयोग करता हूँ वो बहुत सार्थक है, वो ऐसी भाषा है जो बहुत अच्छी तरीके से मेरी भावनाओं को व्यक्त कर सकती है, तो मुझे हिंदी लेनी चाहिए। अगर मैं टूटी फूटी हिंदी लिखता हूँ और हिंदी में शब्द चुन ही नहीं पाता हूँ, और जब मैं हिंदी लिखने लगता हूँ और मेरी जो वोकैबुलरी है वो बड़ी हल्की है हिंदी में, मुझे बार बार उन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो हिंदी के है ही नहीं, तो मैं हिंदी में पिछड़ जाऊंगा। हालांकि राजभाषा अधिनियम के अनुसार हिंदी के अंदर आप किसी भी भाषा का शब्द अगर देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो राजभाषा अधिनियम है। वो इसलिए है कि अधिक से अधिक लोग हिंदी पे काम करें। पर जब हम हिंदी भाषा का ज्ञान जानने के लिए कोई एग्ज़ाम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपके पास हिंदी का पर्याय नहीं है और आपने इंग्लिश का शब्द का चुनाव किया है, तो आपके भाषा ज्ञान के आधार में नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए आप हिंदी को आसान भाषा मत समझिए, अंग्रेजी को भी आसान भाषा मत समझिए, हिंदी को भी कठिन भाषा मत समझिए, अंग्रेजी को भी कठिन भाषा मत समझिए। समझना क्या जरूरी है? समझना ये जरूरी है कि मुझे कौन सी भाषा अच्छी आती है इन दोनों में। अगर आपका हिंदी में महारत है, हिंदी भाषा लीजिए, आपका अंग्रेजी में महारत है, अंग्रेजी लीजिए। इसलिए हिंदी का चुनाव नहीं करना कि मैं अंग्रेजी में वीक हूँ। अब एक दिक्कत और आती है आपको, देखो सब कंपटीशन के लिए आप इंग्लिश को तैयार कर रहे हो, थोड़ा सा और तैयार करोगे आरआरबी में तैयारी हो जाती है। पर जब आप हिंदी का चुनाव करते हो तो उसके लिए हिंदी की अलग से तैयारी करते हो, तो क्या हो गया, आपका काम बढ़ गया। और इस चक्कर में काफ़ी लोग हिंदी की वजह से फेल हो जाते हैं। मतलब आपको अजीब लगेगा ये, पर अगर आप पूछोगे जो लोग फेल हुए वो कहेंगे सर गलती हो गई, हिंदी ले ली थी, अंग्रेजी ले लेते तो शायद पास ही हो जाते। तो इसको बड़ा ध्यान में रखना है। और आप काफ़ी लोग पूछते हैं सर हिंदी का मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो जो मैंने आपको मॉक टेस्ट सजेस्ट किया है उसमें हिंदी का अच्छा मटेरियल दिया हुआ है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दिया है, इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे और एनुअल प्लान ले लेंगे, साथ में बैंकिंग सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लीजिए और कूपन कोड AA03 लगा लेंगे, 10% आपको ऑफ आ जाएगा। तो जो आपके मेन मॉक टेस्ट हैं फुल लेंथ, उसी में हिंदी पेपर कवर्ड है। सेक्शनल मॉक टेस्ट केवल 3 भाषाओं को कवर किया गया है, 3 सब्जेक्ट को कवर किया गया है, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। वहाँ आपको हिंदी का नहीं मिलेगा सेक्शनल में। मगर अगर आप ओवरऑल तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की तो नेचुरल है क्वांट और रीजनिंग भी आपको चाहिए, इसलिए आपको बैंकिंग सेक्शनल मॉक टेस्ट लेना चाहिए। कहीं आप गलत समझ जाए, आप सोचें कि बैंकिंग सेक्शनल मॉक टेस्ट सर कह रहे हैं हिंदी का भी अवेलेबल है, हिंदी का नहीं है उसमें अवेलेबल। हिंदी पेपर आपको मिलेगा, मेन जो मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसमें एक ऑप्शन आरआरबी के अंदर हिंदी पेपर की भी दी गई है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।